So, a very good afternoon, everyone. We were doing the top. We were yesterday, day before yesterday, we were discussing the topic that was National Family Planning Program, right? So, we'll be continuing with the same topic today, right? So, as because some of the topics were left with this topic, so let's start with that. So in the previous lectures, we have discussed about like various methods of contraception. In this, we have discussed about this condoms. We have discussed IUCDs. We have discussed, right. Then we have discussed about Antra, that was injection MPA, right. Then lactation amenorrhea method हमने discuss किया था. That was also a effective method for preventing pregnancy. Then oral contraceptives we have discussed. Then after that we have discussed about Malan, that was coming and that comes under combined oral contraceptives. ये हमने discuss कर लिया था. Then yes, so now we'll continue with Malayan, right? So in the last lectures we have discussed that the Malayan has like a total 28 tablets, 21 are hormonal tablets and 7 will be iron tablets, right? So ये हम डिस्कस कर रहे थे. और नेक्स्ट आपका आ जाता है इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड पिल्स, है ना. ये आ जाता है अगर मान ला इनमें आपने कोई जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसमें आपने कोई मिस पिल जो है वो मिस कर दिया है, देन व्हाट हाउ टू मैनेज इट, राइट. सो इन दिस लाइक मिस्ड 1 or 2 pills, then started the new pack 1 or 2 days late, right. Then take 1 hormonal pill as soon as possible or 2 pills at the scheduled time. And if you have missed 3 or more pills in the first or second week or started new pack 3 or more days late, then take 1 hormonal pill as soon as possible and continue the scheduled pills. And use a backup method for the next 7 days. And also can consider taking emergency contraceptive pill if she had sex in the past 72 hours. Then if the woman has missed 3 or more pills in the third week, then take 1 hormonal pill as soon as possible and finish all hormonal pills in the pack as scheduled. Throw away the 7 non-hormonal pills in a 28-day pill pack. Then start a new pack the next day, right? Then next आता है आपका जो contraceptive measures में, that is progestin only pills, that are POPs, right? So they contain very low dose of synthetic hormone known as progestin, like natural hormone progesterone, right? And all 28 pills in a packet are hormonal tablets. So unlike Malayan, इसके अंदर जो 28 tablets रहेंगी वो सारी कौन सी हैं? Hormonal tablets हैं. So these are safe for breastfeeding women and can be started earlier than 6 weeks postpartum. तो ये breastfeeding mother के लिए भी safe है, तो mother जो है वो उसको postpartum period में, ठीक है, भी use कर सकती है. Then more effective along with breastfeeding than when taken after breastfeeding stops, ठीक है. So ये ज़्यादा effective, और ज़्यादा effective हो जाती है when the mother is breastfeeding the baby. Then it decreases the risk of ectopic pregnancy, and new pack to be started on the next day at the same time as starting a pack last late risks pregnancy. Then there is no delay in return of fertility after POPs are stopped. तो इसमें fertility वापस आने में भी time नहीं लगता है. How POPs work? So thickening cervical mucus. ये क्या करते हैं? Cervical mucus को जो है वो थिक कर देते हैं जिससे कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो एग तक पहुंच नहीं पाता है. देन प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरीज, तो ओवुलेशन को भी ये प्रिवेंट करता है. देन हाउ टू यूज पीओपी. सो 1 pill टू बी टेकन एवरी डे एंड एट सेम टाइम अंटिल पैकेट इज एम्प्टी. तो एक टैबलेट लेनी है सेम टाइम पे हर दिन जब तक पैकेट जो है वो खत्म नहीं हो जाता. लिंकिंग पिल इनटेक टू अ डेली एक्टिविटी मे हेल्प हर रिमेंबर टू टेक द पिल डेली एंड रिड्यूस सम साइड इफेक्ट्स, ठीक है. तो किसी भी डेली एक्टिविटी के साथ लिंक कर सकती है वुमेन की, जब भी वो ये काम करने लगेगी तो साथ में उसको टैबलेट लेनी है. उससे क्या होगा, वो टैबलेट लेना नहीं भूलेगी, राइट. और जिससे कि साइड इफेक्ट भी जो है वो कम हो जाएंगे. When she finishes 1 pack, first pill from the next pack should be taken on the very next day at the same time. जब एक पैक खत्म हो जाएगा और अगले दिन नेक्स्ट पैक जो है वो स्टार्ट करना है तो वो सेम टाइम पे ही स्टार्ट करना है. Conditions where POP should be avoided, like if the woman is on treatment with anticonvulsant या फिर rifampicin जो है that is antitubercle drug, है ना. तो उस केस में जो डॉट्स थेरेपी में हम देते हैं पेशेंट को, तो अगर ऐसा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है वुमेन का तब नहीं लेंगे. देन हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है अगर, या लिवर सिरोसिस है या फिर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, उस केस में भी ये अवॉइड करना है. देन इफ द वुमन हैज डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की उसे कंप्लेंट है तो भी वो अवॉइड करेगी.
देन कॉमन साइड इफेक्ट्स इसमें आपका आ जाता है लाइक इरेगुलर ब्लीडिंग है, एमेनोरिया है, नोजिया है, हेडेक है, डिजीनेस है, राइट. So these all are the common side effects. Then there will be breast tenderness, and that is the other side effect. Then occasional ovarian follicular enlargement हो सकती है, तो जो follicles होते हैं वो enlarge हो सकते हैं, and this can happen occasionally. Then limitations क्या है इसकी? limitations आपका इसमें आ जाता है effectiveness इसकी decrease हो जाती है जब woman जो है वो breast feeding कराना बंद कर देती है. तो as I have told you earlier कि breast feeding के साथ ये ज्यादा effective होती है, लेकिन इसकी effectiveness जो है वो कम हो जाती है जब mother breast feed कराना बंद कर देगी. Do not protect against sexually transmitted infections और HIV. तो उनके against ये protection नहीं देता क्योंकि physical barrier नहीं provide करता ये. ठीक है. देन आता है मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड पिल. तो इस केस में अगर आप प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल के केस में अगर आप टैबलेट लेना जो है वो मिस कर देते हैं तो क्या कर सकते हैं आप? सो 3 और मोर आवर्स लेट टेकिंग अ पिल और मिसेस वन कंप्लीटली. ठीक है, या तो अपने 3 से 4 घंटे लेट हो गए हो दवाई खाने में, या फिर आप एक जो डोज है वो मिस ही कर दी है. देन टेक अ पिल एज सून एज पॉसिबल. जैसे याद आया तुरंत अभी खा लेनी है. एंड कीप टेकिंग पिल्स एज यूजुअल वन ईच डे. ठीक है, तो दिन में एक ही टैबलेट लेनी है और एज यूजुअल जैसे वो लेती है उस शेड्यूल पे ही उसको लेनी है. देन शी मे टेक 2 पिल्स एट द सेम टाइम ऑन और द सेम डे. अगर उसने एक टैबलेट पूरी मिस कर दिया तो अगले दिन वो 2 टैबलेट्स जो है वो ले सकती है. If she has monthly bleeding, then a backup method should be used for the next 2 days, and also can consider taking ECPs if she had sex in the past 72 hours. ठीक है, अगर 72 hours में से सेक्स किया है हुआ है तो उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो साथ में लेनी है. Then if she has vomiting or diarrhea, if she vomits within 2 hours after taking the pill, she should take another pill from the pack as soon as possible. अगर सपोज मेडिसिन खाया और 2 घंटे के अंदर उसको वॉमिट आ गया तो उसको मेडिसिन की डोज जो है वो रिपीट करनी है. ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करना है स्केड्यूल जैसे वो एज यूजुअल लेती है. राइट. So if her vomiting or diarrhea continues, follows the instruction for missed pills above. जो ऊपर बताया है, अगर उसका वॉमिटिंग डायरिया कंटिन्यू रहता है. देन नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रोमन. ठीक है, सेंट्रोमन आपको बताया था छाया के नाम से आता है ये, राइट. गवर्नमेंट सप्लाई में भी आएगा ये. तो छाया के नाम से ये आता है. सो इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल एंड वंस अ वीक पिल. ठीक है, तो ये नॉन स्टेरॉइडल है और नॉन हार्मोनल है. ठीक है, और इसको वीक में एक बार लेना है. Then it has weak estrogenic action on bones but strong anti-estrogenic action on the uterus and breast. ठीक है, तो anti-estrogenic action है इसका यूट्रस और ब्रेस्ट के ऊपर, लेकिन इसका एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट जो है थोड़ा थोड़ा बोन्स पे नजर आता है. सो सेम सेफ फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इवन सून आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. ठीक है, तो आप फॉलोइंग डिलीवरी मदर से ले सकती है और ब्रेस्ट फीडिंग में ये सेफ है. देन प्रोलॉन्गेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द ओनली साइड इफेक्ट. इससे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है एंड अकर्स 8% केसेस यूजुअली इन द फर्स्ट 3 मंथ्स. इट मेक्स द पीरियड्स लाइटर एंड कैन हेल्प एनीमिक वुमेन. ठीक है, तो पीरियड्स को ये थोड़ा ब्लीडिंग इसमें कम हो जाती है ये लेने से, जिससे कि जो एनीमिक वुमेन है उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी उनको. कैन बी यूज सेफली इन कंडीशंस वेयर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट एडवाइज. ठीक है, तो जिस जगह पे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो वहां पे ये टैबलेट जो है वो ली जाती है क्योंकि ये नॉन हार्मोनल और नॉन स्टेरॉइडल है. देन इट डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी. ठीक है, इससे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं, जैसे अभी हमने उससे पहले वाली ड्रग में पढ़ा था पीओपीज में. एंड रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी ऑन स्टॉपिंग द ड्रग इज प्रॉम्प्ट. तो जल्दी इससे फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाती है. देन व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू यूज सेंट्रोमन. ठीक है, आपको बताया मैंने ये वीक में जो है एक बार लेनी है आपने ये. सो 1 पिल 30 mg की होती है which is taken twice a week for first 3 months. तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, हफ्ते में 2 बार लेनी है. 30 mg की टैबलेट है. देन फॉलोड बाय वंस अ वीक देयर आफ्टर. 3 महीने के बाद फिर हर हफ्ते में एक बार लेनी है. स्टार्टिंग फ्रॉम 4th मंथ द पिल इज टू बी टेकन वंस अ वीक. तो 4th मंथ से एक बार लेनी है बस वीक में on the first pill day and should be continued on the weekly schedule regardless of her menstrual cycle. तो menstrual cycle को consider नहीं करना और हर हफ्ते हमने उसी दिन पे उसी टाइम पे जो है वो मेडिसिन खानी है. सो इनिशिएशन जब हमने करनी है इसकी स्टार्ट करनी है, राइट. देन उस टाइम पे फर्स्ट पिल इज टू बी टेकन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड. जब हमने स्टार्ट करना है तो फर्स्ट कब लेनी है? जब पीरियड का फर्स्ट डे होगा. ठीक है, एंड द सेकंड पिल 3 days लेटर. और सेकंड पिल कब लेनी है? उसके 3 दिन के
बाद, क्योंकि हफ्ते में 2 बार लेनी है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। तो एक हम कब स्टार्ट करेंगे लेने के लिए, जब पीरियड का फर्स्ट डे होगा। फिर दूसरी टैबलेट कब लेनी है, उसके 3 दिन के बाद, राइट। देन मेजर एडवांटेजेस इसके क्या हैं, दे आर हाईली इफेक्टिव इफ टेकन करेक्टली, बहुत इफेक्टिव है ये अगर ये सही तरीके से ली जा रही है। एंड इट कैन बी गिवन फॉलोइंग इमीडिएटली फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ, देन डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क भी जो है वो इससे बहुत कम हो जाता है। एंड इट इज सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। अच्छा, किस केसेस में ये जो सेंक्रोमन है या छाया है वो सूटेबल नहीं है, अगर मदर को पीसीओडी है, अगर वुमेन को पीसीओडी है या सर्वाइकल हाइपरप्लेजिया है, या फिर उसको जॉन्डिस की या फिर लीवर डिसीज की कोई हिस्ट्री दी है, लाइक लीवर सिरोसिस की कुछ प्रॉब्लम रहा है, या सीवियर एलर्जिक स्टेट हुई है उसकी कोई, या फिर कोई क्रोनिक इलनेस है उसको, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई रीनल डिसीज, राइट। Then managing missed pill. So take a pill as soon as possible after it is missed. जैसे ही मिस हो जाए और याद आ जाए तो फटाफट से मेडिसिन ले लेनी है. If pill is missed by lesser than 7 days, take the missed pill ASAP and normal schedule to be continued and a backup method to be used till the next period start. तो अगर सपोज एक बार पिल जो है वो मिस हो गई है और 7 डेज से कम हुए हैं उसको मिस हुए, ठीक है, तो क्या करना है, उस मिस्ड पिल को फटाफट से लेना है और बाकी का स्केड्यूल जो है वो सेम रखना है जैसे पहले चल रहा था। और तब तक उसको फिर जब तक नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाते मीनवाइल, तो उसको क्या करना है, तब तक कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। इफ पिल इज मिस्ड बाय मोर देन 7 डेज, अगर 7 दिन से ज्यादा हो गए पिल को मिस किए हुए, देन द क्लाइंट नीड्स टू स्टार्ट टेकिंग इट ऑल ओवर अगेन लाइक अ न्यू यूजर। तो उसको दोबारा से जैसे एक नया यूजर है, मतलब स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक 3 मंथ्स में 3 मंथ्स के लिए हर हफ्ते में 2 बार टैबलेट लेनी है, फिर देन एक बार टैबलेट लेनी है फोर्थ मंथ से, ठीक है। देन इफ पीरियड्स आर डिलेड बाय मोर देन 15 डेज, अगर पेशेंट के पीरियड जो है वो 15 दिन से ज्यादा ऊपर हो गए और उसको पीरियड्स नहीं आए हैं, ठीक है, तो उस केस में उसको प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो करवाना है। अगर पीरियड मिस हुए 15 डेज से ऊपर हो गए, अगर 7 डेज 8 डेज हुए तब बॉदर नहीं करा, लेकिन 15 डेज से ऊपर हो गए तब उसको प्रेगनेंसी टेस्ट दोबारा कराना है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट आती है ईसीपी, दैट आर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है। सो टू बी यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, राइट। 72 आवर्स क्यों, क्योंकि जो ओवम का लाइफ स्पैन है दैट इज 24 आवर्स और जो स्पर्म का होता है दैट इज 48 to 72 आवर्स, राइट। So it is to be used within 72 hours of unprotected sex. Then sooner it is taken more effective. जितनी जल्दी लोगे उतनी ज्यादा इफेक्टिव है, और ये हर तरह की वुमेन के लिए जो है वो सेफ है, और स्पेशली उन वुमेन के लिए है ये जो कि नो हार्मोनल या नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन नहीं लेती हैं। देन नॉट अप्रोप्रिएट एज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे इसको यूज करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती है, ठीक है, और देन और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं मदर को, वुमेन को। देन इन नेशनल प्रोग्राम emergency contraceptive pill contains only progesterone, levonorgestrel and available as free and आशा सप्लाई। अब आशा सप्लाई में ये आती है इजी पिल के नाम से, ठीक है, और आपने मार्केट में सुना होगा, इसका टीवी पे ऐड देखा होगा, आता था आई पिल के नाम से। तो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। सो डू नॉट डिस्टर्ब एन एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी। तो अगर ऑलरेडी वुमेन प्रेग्नेंट है तो अगर और उसने ये टैबलेट अगर ले ली है, उसको नहीं पता था दैट शी इज प्रेग्नेंट, तो ये मेडिसिन उसकी उस प्रेगनेंसी पे इफेक्ट नहीं करेगी। Then how to use ECP? So to be taken immediately after unprotected accidental intercourse or as soon as possible within next 3 days, ठीक है, तो immediately खाना है, और otherwise अगर immediately नहीं खाया तो at least 72 hours के अंदर, यानी कि 3 days के अंदर अंदर खाना है, right? Then how ECP works? One second. Then next is how to use ईसीपी। अभी आपको बताया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ये लेना होता है, और वैसे तो इमीडिएटली ले लिया जाए तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अगर इमीडिएटली नहीं लिया है मदर ने तो एटलीस्ट इसको 3 डेज के बीच बीच में लेना ही लेना है, राइट, जिससे कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। Then how ECP works? So it works primarily by preventing or delaying release of eggs from the ovaries, ठीक है, तो ovulation को prevent करता है ये, and does not work if woman is already pregnant. It would work
if the woman is already pregnant. देन ईसीपी के साइड इफेक्ट्स, ठीक है, ईसीपी के साइड इफेक्ट्स आपके आ जाते हैं लाइक नोजिया, वॉमिटिंग एंड ब्लीडिंग, इरेगुलरिटी, राइट. देन आफ्टर दिस, आफ्टर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, नेक्स्ट इज कॉन्डम, राइट. सो कॉन्डम जो है मेल और फीमेल में दोनों में अवेलेबल है, ठीक है. फीमेल कॉन्डम को वी कॉल इट एज डायफ्राम, और मेल कॉन्डम तो कॉमनली सबने देखा है, ठीक है. सो जो मेल कॉन्डम है दैट इज अवेलेबल एज अ फ्री सप्लाई इन आशा, राइट. अंडर आशा सप्लाई आता है ये. देन न्यू कॉन्डम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है. जितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उतनी बार न्यू कॉन्डम जो होगा वो चाहिए. देन करेक्ट यूज रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है. कॉन्डम जो है उसका करेक्टली यूज होना चाहिए, अदरवाइज उससे जो है वो फेलियर के चांसेस हो जाते हैं, मतलब द मदर वुमन कैन कंसीव. एंड इफ कॉन्डम स्लिप्स और रप्चर, ठीक है, ईसीपी कैन बी टेकन. अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सपोज जो कॉन्डम है वो स्लिप हो गया या फिर आप बोल सकते हो कि रप्चर हो गया है, ठीक है. सो इन दैट केस the woman has to take emergency contraceptive pill, right, as soon as possible. Then only contraceptive providing protection against sexually transmitted infections and HIV, ठीक है. So ये condom जो है, ठीक है, this is the only method जिससे कि आप sexually transmitted disease और HIV को भी prevent कर सकते हो if you are having sexual intercourse with the infected person, right. So this is the only contraceptive which provides protection against sexually transmitted infection and HIV. Then cooperation of male partner required, ठीक है. कॉन्डम जो है, मेल कॉन्डम जो है, इसके लिए जो मेल पार्टनर है उसकी कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज सम पीपल थिंक दैट वेयरिंग अ कॉन्डम कैन डिक्रीज द प्लेजर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो कॉपरेशन ऑफ द मेल इज वेरी मच एसेंशियल. देन नो इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट मिल्क एंड नो हार्मोनल साइड इफेक्ट. इससे ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और प्रोडक्शन पे भी उसकी क्वालिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. और कोई हार्मोनल साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. एंड इजी टू कीप स्टॉक हैंडी, कैन बी यूज्ड बाय मेन ऑफ एनी एज, ठीक है. सो इट कैन बी यूज्ड बाय मेन ऑफ एनी एज. देन नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है. तो परमानेंट मेथड्स में आपके दो आते हैं, फीमेल एंड मेल स्टरलाइजेशन, राइट. सो फीमेल स्टरलाइजेशन को जो है हम बोलते हैं वेसेक्टमी, ठीक है. वी कॉल इट एज tubectomy. Female sterilization is called as tubectomy and male sterilization is known as vasectomy, right. तो इसमें आपके दो आ जाते हैं. फीमेल स्टरलाइजेशन में मिनी लैप एंड लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, एंड मेल स्टरलाइजेशन में आपका दो आते हैं, एनएसबी एंड कन्वेंशनल वेसेक्टमी. सो वी विल बी डिस्कसिंग ओवर देम one by one. Then next is limiting methods of family planning. So limiting methods are for those women or couples who do not want any more pregnancy as they have completed the family, ठीक है. तो ये मेथड उनके लिए है जिनकी फैमिली कंप्लीट है एंड दे डू नॉट वांट टू हैव अनदर चाइल्ड. What methods can be used as limiting method, ठीक है. तो कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं. We can go for female sterilization. The man can even opt for male sterilization or vasectomy, and even the woman can opt for long acting reversible method like IUCD. उसमें हमने डिस्कस किया है, कॉपर टी होती है ना 380 एंड तो उसमें क्या है, प्रोटेक्शन जो है 5 years और 10 years के लिए मिल जाती है, राइट. देन हम डिस्कस करेंगे फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसमें आपको बताया मैंने दो इसमें अप्रोचेस है, मिनी लैप एंड लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन. सो परमानेंट मेथड है ये, अ प्रोसीजर फॉर परमानेंटली स्टॉपिंग फ्यूचर प्रेगनेंसी बाय ऑक्लूडिंग द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूब्स को जो है वो ऑक्लूड कर देंगे एक तरह से. देन रिवर्सल इज डिफिकल्ट एंड मे नॉट बी सक्सेसफुल. लेकिन जब किसी का एक बार फीमेल स्टरलाइजेशन का प्रोसीजर हो गया, ट्यूबेक्टमी का प्रोसीजर हो गया, तो उसको रिवर्स करना जो है वो डिफिकल्ट है. मतलब अगर फिर से अगर आप कोशिश करो कि जो वुमेन है वो दोबारा से कंसीव कर ले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, राइट. अच्छा, ये मेथड जो है बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ये, और फेलियर इसमें हो जाता है, लाइक फेलियर के चांसेस बहुत रेयर है, लाइक 5/1000 वुमेन, मतलब अगर 1000 वुमेन का हुआ है तो 5 के अंदर कंसीव करने के जो होता है रिस्क रहता है. अदरवाइज ज्यादा वो नहीं है, रिस्की नहीं है ये, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि इफेक्टिव मेथड है स्टरलाइजेशन का. देन नेक्स्ट आ गया आपका इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ क्लाइंट बिफोर द प्रोसीजर आर मैंडेटरी, ठीक है. तो रिटन कंसेंट जो है वुमेन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड इट कैन बी डन विद इन 7 days एंड आफ्टर 6 weeks ऑफ डिलीवरी. तो डिलीवरी के 7 days के अंदर अंदर या फिर डिलीवरी के 6 weeks के बाद आप इसको जो है वो वुमेन जो है वो करवा सकती है. देन इट इज रिन्यूड फोकस ऑन पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन, ठीक है.
ड्यू टू इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्योंकि अब आजकल क्या है, वुमेन ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में ही डिलीवर करती हैं, तो वहां उनको मोटिवेट किया जाता है इसके लिए, राइट। तो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि डिलीवरी के 7 डेज के अंदर अंदर जो है इसको हम करवा सकते हैं। देन हाउ इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, तो क्योंकि इसमें फेलोपियन ट्यूब दोनों की दोनों जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि हम उसे कट करके लाइगेट कर देते हैं, राइट। सो दैट द एग कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द ब्लॉक एरिया, ठीक है। तो एग जो है वो ब्लॉक्ड एरिया में ही रह जाएगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल टाइम जो होता है दैट इज ओनली 12 to 24 आवर्स, तो वो ओवम जो है वो वहीं खत्म हो जाएगा। देन 2 टाइप्स की अप्रोचेस इसमें होती है, वन इज मिनी लैब ऑपरेशन एंड अनदर वन इज लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, ठीक है। तो 2 तरह का हम ये यूज करते हैं। सो मिनी लैब में क्या होता है, जो ट्यूब्स होती हैं दे आर कट और ब्लॉक्ड आफ्टर ब्रिंगिंग देम टू द इंसिजन मेड इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो हम इंसिजन इसमें एब्डोमेन में बनाते हैं और जो ट्यूब्स होंगी उसको कट करके लाइगेट कर देते हैं। सो पीपीएस जो है आपका पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन जो है वो 7 डेज के अंदर अंदर हम कर देते हैं, अगर वुमेन ने वेजाइनली डिलीवर किया है या फिर उसने सी सेक्शन से डिलीवर किया है। देन इंटरवल पीरियड भी होता है इसके अंदर, उसमें भी हम कर सकते हैं ये ऑपरेट। इंटरवल पीरियड में क्या होता है, एनी टाइम आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी, तो 6 वीक्स के बाद मतलब पोस्टपार्टम के बाद कभी भी कर सकते हैं। देन पोस्ट अबॉर्शन, तो अबॉर्शन के बाद भी इसको हम कर सकते हैं, और अगर वुमेन का जो अबॉर्शन जो है वो फर्स्ट या सेकेंड ट्रिमेस्टर में हुआ है, राइट। देन दिस वाज अबाउट मिनी लैप अप्रोच, अनदर वन इज लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। सो लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन में क्या करेंगे, लेप्रोस्कोप के थ्रू which is introduced through a small incision made in the abdomen, ठीक है। तो हम ट्यूब्स को ऑक्लूड कर देते हैं। सो ये भी सेम है कि आप इसको पोस्ट अबॉर्शन कर सकते हो अगर वुमेन का फर्स्ट ट्रिमेस्टर में जो है वो अबॉर्ट हुआ है, एंड इट कैन बी डन एनी टाइम आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी आफ्टर रूलिंग आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आप इसको डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद जो है वो रास्ता जाने का ये है, एनी टाइम आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी जो है लैप्रोस्कोपिक का ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये वाली अप्रोच से आप विद इन 7 डेज नहीं करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो एडवांटेजेस तो आपको बता दिए हैं इसमें कि हाईली इफेक्टिव मेथड है, इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, एंड इसके लिए जब किसी ने एक बार ये करवा लिया तो दोबारा कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचने की उसको जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, एंड ये सेक्सुअल एक्टिविटी को भी अफेक्ट नहीं करता, मेंस्ट्रुएशन को भी अफेक्ट नहीं करता है। देन मोर ओवर इट वोंट अफेक्ट द ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी क्वालिटी को या क्वांटिटी को, है ना। देन नथिंग टू डू और टू रिमेम्बर बाय द वुमेन, इसमें वुमेन को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पिल्स में क्या है, आज ली थी फिर अब लेनी है, इस टाइम पे दी थी, है ना, तो वो सब इसमें नहीं है। देन लिमिटेशंस क्या है, इसके लिए एक फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है उसको, देन सर्जिकल प्रोसीजर है, तो दैट इज अ लिमिटेशन, है ना। एंड इट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट STIs एंड HIVs। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरीज कुछ हो सकती है, जैसे कि एडवर्स रिएक्शन हो सकता है एनेस्थीसिया का। देन इंसिजन साइड पे इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मिनी लैप में हम इंसिजन बनाते हैं एब्डोमेन के अंदर, है ना, या फिर लैप्रोस्कोपी में हल्का सा छोटा सा हम इंसिजन देते हैं, तो इंसिजन साइड पे हो सकता है कई बार इन्फेक्शन, क्योंकि ये तो नॉर्मली किसी भी सर्जरी के साथ ये कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड रहते ही रहते हैं। देन इट कैन बी ब्लीडिंग इन एब्डोमेन कैन इवन अकर, है ना, फ्रॉम द कट विच यू हैव गिवन इन द फ्लोपियन ट्यूब, तो वहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन आते हैं फॉलो अप, तो जब किसी का स्टेरिलाइजेशन हो जाता है तो फॉलो अप कैसे कैसे करवाना है उसको, तो फर्स्ट फॉलो अप जो होगा वो सर्जरी के 48 आवर्स के बाद होता है। सेकंड फॉलो अप जो है वो सर्जरी के 7th डे पे होता है, ठीक है। देन थर्ड फॉलो अप जो होगा दैट इज डन 1 month आफ्टर द सर्जरी और आफ्टर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद भी हो सकता है या फिर आफ्टर 1 month ऑफ द सर्जरी होता है थर्ड फॉलो अप। एंड क्लाइंट टू बी टोल्ड टू रिटर्न टू द फैसिलिटी इफ देयर इज एनी मिस पीरियड, है ना, तो क्लाइंट को बोलना है कि आपने दोबारा हॉस्पिटल आना है अगर आपका कोई पीरियड जो है वो मिस हो जाता है या आपको सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी लग रही है विद इन 2 वीक्स टू रूल आउट द प्रेगनेंसी, तो सर्जरी के 2 हफ्ते के अंदर उसको बताना है कि अगर आपको पीरियड मिस हो गए हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको फैसिलिटी में वापस आना है, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जा सके टाइमली। So this was about the tubectomy, right? Then next comes vasectomy, right? That is male sterilization. One second. Yes, next is male sterilization, that is vasectomy. ठीक है. So vasectomy जो है that is also a permanent method and it is a reversible. The इसमें जो reversal है वो impossible तो नहीं है but difficult है इसके अंदर reversal, ठीक है. लेकिन ये method जो है, ठीक है, this method is done in males.
ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं वेसेक्टमी बिकॉज इट हैज रिलेशन विद द वास्ट डिफरेंस. So it involves cutting or blocking the vas deferens, the tubes that carries the sperms to the penis. तो ये vas deferens को हम इसके अंदर कट कर देते हैं, जो कि sperms को ट्रेवल करवाता है from this जो sperms को ट्रेवल करवाता है पेनिस तक, राइट. सो टाइप्स इसके दो आ जाते हैं आपके, एक है एनएसवी दैट इज नो स्कैल्पल वेसेक्टमी, और एक मेथड है आपका कन्वेंशनल. ठीक है, नो स्कैल्पल वेसेक्टमी, स्कैल्पल का मतलब स्कैल्पल ब्लेड जो है वो नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी कट जो है स्किन के ऊपर नहीं लगेगा, कोई स्टिच नहीं लगेगा. ठीक है, आफ्टर द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड. देन इट कैन बी डन ऑन मेन एनी टाइम अंडर द लोकल एनेस्थीसिया. तो मेन के ऊपर कभी भी ये किया जा सकता है. ठीक है, और लोकल एनेस्थीसिया हम इसके अंदर देते हैं. एंड वेसेक्टमी जो है ये ज्यादा सिंपलर मेथड है इन कंपैरिजन टू ट्यूबेक्टमी, राइट. Then how it prevents pregnancy? So tubes those carry the sperms, यानी कि vas difference जो है will be cut so that sperms cannot pass through the semen, ताकि जो sperms है वो ना पेनिस तक जो है वो ना पहुंच सके. So there will be no sperms during the ejaculation which occurs after 3 months of operation. ठीक है, तो ये इसके अंदर जो स्टरलाइजेशन अचीव होती है, इफेक्टिवनेस जो आती है ऑपरेट की, वो ऑपरेट होने के 3 मंथ्स के बाद आती है बिल्कुल. ठीक है, सो देयर विल बी नो स्पर्म. जब पेशेंट इजैकुलेट करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे, तो there will be no release of the sperms in the ejaculate, right. Then next आ जाता है इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. एडवांटेजेस इफेक्टिव मेथड है एक तो, ठीक है, और यूजुअली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं. और वेसेक्टमी जो है वो ट्यूबेक्टमी से ज्यादा सिंपलर प्रोसीजर है, सिंपल ऑपरेशन है, राइट. लोकल एनेस्थीसिया की इसमें जरूरत पड़ती है. देन असेप्टर कैन वॉक बैक होम विद इन 30 मिनट्स. ठीक है, ये देखो अब आपकी ऑपरेट कराने के 30 मिनट्स के बाद वो अपने घर भी जा सकता है. देन फेलियर रेट लेस देन फीमेल स्टरलाइजेशन. इसका फेलियर रेट जो है वो फीमेल स्टरलाइजेशन से और ज्यादा कम है. फीमेल का भी कम था लेकिन इसका उससे भी ज्यादा कम है फेलियर रेट. देन देयर कैन बी नो मेजर कॉम्प्लिकेशन. देयर वोंट बी एनी मेजर कॉम्प्लिकेशन. यूजुअली कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं राइज होगी, क्योंकि स्किन पे कट ही नहीं लगे, जैसे कि उसमें हमने पढ़ा कि ब्लीडिंग के चांसेस हैं या इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, है ना. तो ये सब चीजें इसके अंदर नहीं है. तो दैट आर दी एडवांटेजेस. देन लिमिटेशंस आपकी आ जाती है, नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर. ठीक है, तो एकदम प्रोसीजर आपने कर दिया तो एकदम से ये इफेक्टिव नहीं है. यूजुअली 3 मंथ्स लग जाते हैं इसको इसकी इफेक्टिवनेस को अचीव होने में. यानी कि अगर आज ऑपरेशन हुआ है तो 3 महीने के बाद पेशेंट जो है एकदम से आप उसको बोलोगे कि वो अब स्टेरलाइज है. देन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआईज एंड इंक्लूडिंग एचआईवी. तो ये भी प्रोटेक्ट नहीं करता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एचआईवी से, क्योंकि फिजिकल बैरियर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा लाइक कॉन्डम. ठीक है, तो सिर्फ कॉन्डम है एक जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और एचआईवी से प्रिवेंट कर सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. क्लियर. सो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर. देन नेक्स्ट आता है फॉलो अप आफ्टर वेसेक्टमी. तो वेसेक्टमी के बाद जो फॉलो अप होगा वो सेम होगा जैसे कि हमने उसमें डिस्कस किया है ट्यूबेक्टमी में. पहले आपने इसका 48 आवर्स के अंदर होगा फर्स्ट फॉलो अप. सेकंड फॉलो अप सर्जरी के 7 डे पे होगा स्टिच रिमूव करने के लिए, अगर कन्वेंशनल मेथड जो है वो यूज किया गया है, एनएसवी यूज नहीं किया गया. ठीक है, देन आफ्टर 3 मंथ्स रिटर्न टू द फैसिलिटी फॉर सीमन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो देन थर्ड फॉलो अप होगा, उसको 3 मंथ्स के बाद आना है, अपना सीमेन टेस्ट करने के लिए देना है, उसको देखने के लिए कि उसके अंदर स्पर्म है या नहीं है. और अगर उसमें स्पर्म नहीं होगा तो उसको एक नो स्पर्म सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है उस पर्टिकुलर मैन को, राइट. एंड इफ सीमन स्टिल शोज स्पर्म रिटर्न टू द फैसिलिटी एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स. और अगर सीमन के अंदर स्पर्म फिर भी नजर आ जाता है, मिल जाता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर मैन को 6 महीने तक लगातार हर महीने 6 महीने तक आएगा वो, एवरी मंथ उसने विजिट करना है टिल 6 मंथ्स टू द फैसिलिटी चेक करवाने के लिए अपने सीमन को, राइट. एंड इमरजेंसी ये तो रूटीन फॉलोअप हो गया. इमरजेंसी फॉलोअप उसको तब करवाना है अगर उसको एक्सेसिव पेन होता है, उसको फेंटिंग अटैक्स आते हैं, फीवर होता है, ब्लीडिंग होती है, इंक्रीज स्क्रोटल साइज उसका इंक्रीज हो जाता है, या उसको कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है ऑपरेटेड साइड से, जैसे कि कन्वेंशनल मेथड में कट लगा के करते हैं. ठीक है, एनएसपी में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कन्वेंशनल मेथड से हुआ है तो पस डिस्चार्ज के लिए ऑपरेटेड साइड को हम देखेंगे. ठीक है, और इमरजेंसी में फॉलोअप तब होगा जब पेशेंट को जरूरत लगेगी. ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट the topic that is National Family Planning Program or National Family Welfare Program. I hope this topic is clear to everyone. Still, if you are having any doubt, you are free to ask for your queries. Thank you so much for paying your attention. Thank you.